हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेवल एजुकेशन। अब मैं हूँ आपका मनीष स्वामी। आज इस वीडियो में हम वो सीखने वाला है, मैं आपको वो सिंपल डेफिनेशन देने वाला हूँ। व्हाट इज सेविंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हाट इज वेल्थ एंड व्हाट काइंड ऑफ वेल्थ यू शुड क्रिएट। ये हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में और ये सीखेंगे इस वीडियो में। इन माय लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू, आई हैव एक्सप्लेन why you should do financial planning and when you should do financial planning. In that we have learned, if you want to ensure the right amount is available to you at the right point of time, जब भी आपको सही अमाउंट सही टाइम पे अगर मिलना है तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करना है। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं करता है एंड इतना भी नहीं है। पीपल, मेनी पीपल डू नॉट नो what is the difference between saving, what is the difference between investing, what is wealth and what kind of wealth they need to create. And that is the reason, friends, in this video I am going to discuss with you about what is I'm going to give you a simple definition of what is saving, what is investing, and what kind of wealth you should create, and why you should create. That's what I'm going to discuss in this. But before we go ahead, let me give you a disclaimer. I am, whatever I give you, whatever I explain you in this is only for educational purpose. This should not be taken as a financial advice, because in the financial advice, financial consultancy, because the individual situation could be different. What I'm giving you is a general awareness. I'm doing it through this video. So individual situation could be different. So please consult your own personal financial advisor, personal professional, जो आपको help कर रहे हैं तो आपके financial planning, आपका कितना investment होना चाहिए, आपका कितना saving होना चाहिए, आपका कहाँ पे वेल्थ क्रिएट करना चाहिए। ओके, सो विद दिस डिस्क्लेमर आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग ये सोचता है कि अगर मैं अच्छा इनकम कमा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो भी है प्लानिंग मीनिंग ये सब करने की जरूरत नहीं, इट्स ऑल टाइम वेस्टर्स, इसका कोई मतलब नहीं है, अपने आप मेरा जो भी चाहिए मेरे पास पैसा अवेलेबल रहेगा। फ्रेंड्स, in my last 20 years of experience working with thousands of people, I have seen people earning lakhs and lakhs of rupees, but by the end of the month they are depending on credit cards or maybe consumer loans. There is no bank balance left. 20-25 तारीख तक आते आते उनका बैंक खाली रहता है। Have you seen such people, friends? Yes, because just earning is not enough. Just by earning you cannot achieve financial freedom. Just by earning you cannot create wealth. You need to do one step ahead. That is, you need to do savings. Yes, friends, you need to do savings. So that's what in my book I have written, your IQ is not equal to your FQ. In that book, I have clearly explained, how much income you earn, it does not matter. What matters, how much you are able to save by the end of the month. That matters. That defines whether you are earning enough or not. That defines whether you have that skill set, that you have that discipline, or are you serious about your future? Are you serious about your financial freedom? बहुत सारे लोग financial freedom achieve करना चाहते हैं, but they don't take any action. बहुत सारे लोगों को right amount right time में मिलना पसंद करते हैं, but they don't take right action. So that is the reason you need to have a compulsory saving plan. You need to have a compulsory saving plan. If you don't trust yourself, then create a different bank accounts. जो भी आप decide करते हो 20%, 25%, 30% of your income, आप straight away उस saving account में, उस financial freedom account में transfer कर देना चाहिए every month. The moment you receive income, you should transfer that to that account, and that's exactly what I do. The moment I receive, I transfer to my freedom account, my freedom bank account. From that, all my investment goes, so that whatever investment I have to do, I have committed, that will continues to happen. I don't have to, मेरा बहुत सारे लोग ये पूछते थे कि मेरा SIP कौन से डेट को जाता है, मेरा ये पैसा कब काटेगा, क्यों ऐसा सब। अब जस्ट सेपरेट बैंक अकाउंट रखो, वहां रख दो, ऑटोमेटिक कोई भी डेट में जाने तो क्या फर्क पड़ने वाला है। ओके, सो दैट इज द रीजन। सो इफ यू वांट टू एंश्योर कंटिन्यूअसली आपका सेविंग्स होगा फ्यूचर के लिए, बिकॉज सेविंग करना बहुत जरूरी है। अगर सेविंग नहीं करोगे तो आप आज में जी सकते हो, लेकिन कल अगर कोई भी रीजन से इनकम स्टॉप होता है तो इमेजिन व्हाट विल हैपन। सो दैट इज द रीजन यू नीड टू हैव सेविंग्स, राइट। सो वो सेविंग करना है तो यू नीड टू हैव अ फ्रीडम, एक सेपरेट बैंक अकाउंट जहाँ पे आपको उसमें हर महीना ट्रांसफर करना चाहिए। ओके, नाउ I keep saying, ये भी मैं बोलते रहता हूँ, so how much income you earn, it does not matter. What matters, how much you save, it matters. And मैं ये भी बोलते रहता हूँ, how much you save, it does not matter. What matters, how much you are able to invest every month. That matters. How much you are investing, that matters, because there is a difference between saving and investing. Yes, many people get confused. Saving और investing दोनों same ही है। No दोस्तों, saving का मतलब income minus expenses. Income minus expenses equals to savings.
इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल्स टू सेविंग्स. ओके, दैट इज सेविंग्स. फिर इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वो है कि ये जो सेविंग्स आप करते हैं उसको एक प्रॉपर तरीके से एक फ्यूचर गोल्स अचीव करने के लिए एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट में जब आप इन्वेस्ट करते हैं जो आपका इन्फ्लेशन बीट कर सके एटलीस्ट, या फिर जब आपके जिस गोल के लिए आपने किया हुआ है उस गोल जब अराइव होगा, जब गोल आता है उस गोल के टाइम पे पैसा अवेलेबल हो जाता है, देन दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट. फ्रेंड्स, अगर आप सेविंग करते हो, इसका मतलब बोलते हैं ना आपने इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग किया, इसका मतलब क्या पता है? आपने तिजोरी के अंदर पैसा रख दिया लेके जाके, या फिर बेड के नीचे पैसा डाल दिया और सो गए. अगर आप 10 साल को उठ के देखोगे, क्या वो पैसा मल्टीप्लाई हुआ रहेगा या उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा ना. लेकिन फिर भी यार, मैंने तो बैंक में रखा है, उसका मेरे को 1 लाख मैंने रखा था, वो 1.5 लाख हो गया. फ्रेंड्स, 10 साल पहले वो आप जो 1 लाख में जो खरीद सकते थे, वही चीजें अगर आज खरीदना है 2 लाख रुपए देना पड़ रहा है. लेकिन आपको बैंक से कितना मिल रहा है? 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं. आपका पैसा होने के बावजूद भी अभी आपके जैसे और 50,000 रुपए डालना पड़ रहे हैं. दैट इज वाई इट इज कॉल्ड साइलेंट किलर. इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. आपके इन्फ्लेशन सेम 1 लाख रुपए जो आपके पास था पहले, अगर आप एक हॉलिडे में जाना था वो पूरा एंजॉय करके आ सकते थे 1 लाख रुपए, लेकिन आपने सैक्रिफाइस किया, और सैक्रिफाइस किया तो आपको क्या मिला? रिवॉर्ड मिलना चाहिए था ना, लेकिन आपको पनिशमेंट मिला. अगर आपने जो सैक्रिफाइस किया, प्रेजेंट कंजम्पशन को सैक्रिफाइस करके फ्यूचर के लिए आपने सेविंग या इन्वेस्ट करके रखा, और वो फ्यूचर में आज जितना पैसे से खरीद सकता है उससे अगर वही चीज खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज ए पनिशमेंट. You are not getting reward for you sacrificing. You are punished for you sacrificing because you are not invested in the proper investment vehicle or investment product. So that's the reason you need to know the difference between what are savings and what are investment. And that's the reason if you go to banks या post office के कुछ investments है, उसको क्या बोलते हैं? नाम दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, small saving products. Why they are not called small investment products? They are called small saving products because वो बचत करने के लिए, निवेश करने के लिए नहीं है, उसको निवेश नहीं बोलते हैं. Okay, so that's the reason you should know कि there is a difference between saving and investing. अगर आपको डिफरेंस पता चल गया फ्रेंड्स, उसके बाद आप जो भी इन्वेस्ट करोगे, आप जिसके थ्रू भी इन्वेस्ट करोगे, आपको ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या मैं इन्फ्लेशन बीट कर पाऊंगा अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ? शॉर्ट टर्म में दोस्तों ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू बीट द इन्फ्लेशन. शॉर्ट टर्म में यू हैव टू एंश्योर द लिक्विडिटी इज अवेलेबल, बट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर द लॉन्ग टर्म, you should try to, that wherever you are investing, you should invest in such an investment where you are able to beat the inflation. Yes, friends, if you can do that, that means you are following the science of investing. So keep doing that. So friends, so how much you earn, it does not matter. What matters? How much you save, it matters. And how much you save, it does not matter. What matters? How much you invest, it matters. And also, how much you invest, it does not matter. What matters? What matters? How much wealth you have created, that matters. Because I have seen many people after listening या कोई सेशन अटेंड करते हैं, कोई एजुकेशन सेशन अटेंड करते हैं, या टीवी में देखते हैं, या दोस्त ने इन्वेस्ट किया, पड़ोसी ने इन्वेस्ट किया, कलीग ने इन्वेस्ट किया, या फिर इधर उधर देख करके इन्वेस्टमेंट तो शुरू करते हैं दोस्तों. लेकिन द एवरेज लाइफ ऑफ द SIP और इन्वेस्टमेंट पीपल जो लॉन्ग टर्म के लिए कमिट करता है, वो है 2, 2.5, 3, 5 साल के अंदर उसका जान खत्म हो जाता है, मर जाते हैं, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है, बंद कर देते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं. क्योंकि वो लोग जो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट तो शुरू किया लेकिन वो वेल्थ क्रिएट नहीं किया. फ्रेंड्स, आज अंबानी को ये नहीं बोलते कि आप कितना रिटर्न फाइल करते हो, आपने कितना लास्ट ईयर कितना ITR फाइल किया, ये कोई नहीं पूछता है. अंबानी को ये पूछते हैं वेदर वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है या नॉट सक्सेसफुल है. फॉर दैट मैटर एनीवन, किसी को भी अगर वो फाइनेंशियली सक्सेसफुल है नॉट सक्सेसफुल है, अगर ये डिसाइड करना है तो उसको ये नहीं पूछते कि आपने लास्ट में कितना ITR फाइल किया. ये पूछा जाता है कि आपका नेटवर्क कितना है, आपका नेटवर्क पिछले साल से इस साल में कितना ग्रो हुआ है. नेटवर्क का मतलब क्या है? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. जो आपका टोटल एसेट्स है माइनस आपके टोटल लायबिलिटीज माइनस करके जो बचेगा, दैट इज कॉल्ड नेट वर्थ. आप 10 साल काम किया होगा, 15 साल काम किया होगा, 20 साल काम किया होगा, 5 साल काम किया होगा, फिर 1 साल काम किया होगा. ओके, सो आपका नेटवर्थ डिफाइन करेगा कि आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल है
या फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल, आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट लाइफ जी सकते हैं या नहीं जी सकते हैं, आपका नेटवर्क के ऊपर डिसाइड होता है, नॉट बेस्ड ऑन योर इनकम और योर सेविंग रेशियो और योर इन्वेस्टमेंट रेशियो। क्लियर फ्रेंड्स? एंड अगर ये वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छा लोग ये वेल्थ क्यों, मतलब इन्वेस्टमेंट तो शुरू करते 2-3 साल 5 साल में क्यों बंद कर देते हैं? बिकॉज फ्रेंड्स उनके पास कोई टारगेट नहीं रहता है। मुझे कितने का वेल्थ क्रिएट करना है इसका टारगेट नहीं रहता है, और मुझे क्यों वेल्थ क्रिएट करना है इसका भी क्लियर नहीं रहता है। हाँ, रिटायरमेंट के लिए करते, एजुकेशन के लिए करते हैं, बट वो नाम के लिए तो करता है, बट फिर भी वो नाम के लिए अगर एजुकेशन के लिए कर रहे हो, रिटायरमेंट के लिए कर रहे हो, घर बाय करने के लिए कर रहे हो, हैव यू क्वांटिफाइड उस गोल के लिए कितना पैसा चाहिए? अगर आपका बच्चे का एजुकेशन के लिए अगर आपको 50 लाख रुपए चाहिए आज, अगर आपका बच्चे का एजुकेशन तो 20 लाख लगते हैं, अगर आपका बच्चा अगर 10 या 15 साल के बाद कॉलेज में जाने वाला है, हो सकता है उसमें 50 लाख लगेगा इन्फ्लेशन के साथ। ओके, सो वो 50 लाख का टारगेट अचीव करने के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट चालू रखते हैं, अगर ये 50 लाख टारगेट 15 साल में अचीव करना है करके अगर आप डिसाइड करके इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको आप फॉलो कर पाओगे। मुझे रिटायरमेंट के लिए, बहुत सारे लोग रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना है, मेरे पास जो लोग आते हैं ना कि मुझे रिटायरमेंट के लिए सेविंग करना है, इन्वेस्ट करना है, बट डू यू नो हाउ मच यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर रिटायरमेंट? डू यू नो हाउ मच यू रिक्वायर्ड व्हेन यू रिटायर? ये कोई नहीं पूछता। मेरे पास 10,000 रुपए मुझे रिटायरमेंट के लिए करना है, ऐसा है, मतलब बोलते हैं मेरे पास ऐसा है, डॉक्टर के पास गए कि मेरे पास 1,000 रुपए है, डॉक्टर बताओ कोई अच्छा, मुझे फीवर है, मुझे अच्छा कोई आप गोली बता दो, अच्छा कोई 1,000 रुपए में कितना मेडिसिन आएगा बता दो, जो भी प्रॉब्लम है मेडिसिन बताओ करके बोलते। फ्रेंड्स ऐसा नहीं चलेगा। आपका क्या रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट को अचीव करने के लिए आज से आपको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कहाँ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये सब आपके, अगर आपने एक प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल प्लानर को या सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर को आप अपॉइंट करते हो, वो लोग आपको क्लियरली कैलकुलेट करके बताएंगे कि आपका बच्चों का एजुकेशन कितना कॉर्पस चाहिए, आपका रिटायरमेंट के लिए कितना कॉर्पस चाहिए, आप कितने साल में लोन रीपे कर सकते हैं, आप कैसे टैक्स ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और टैक्स ऑप्टिमम एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट किस किस जगह पे कर सकते हैं, आपको राइट टाइम में राइट अगर अमाउंट मिलना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, इमरजेंसी फंड कितना करना पड़ेगा, ये सब आपको कैलकुलेट करके बताता है। तो इसलिए प्लीज कंसल्ट योर प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एडवाइस। दैट्स द रीजन मैंने बिगिनिंग में आपको डिस्क्लेमर बताया, ये जो मैं दे रहा हूँ ये मैं जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, हर एक का सिचुएशन डिफरेंट हो सकता है। ओके, आपका भी डिफरेंट सिचुएशन हो सकता है। तो अगर आपको एक गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ अगर आपको क्रिएट करना है 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन, फ्रेंड्स यू हैव टू एंश्योर दैट यू हैव अ क्लियर टारगेट, कितना कॉर्पस चाहिए और वो क्यों चाहिए, और वो अचीव करने के लिए आज से मुझे कितना इन्वेस्ट करना है। यस फ्रेंड्स, आज बहुत सारे मैं क्लाइंट्स को मैं हेल्प करता हूँ या एजुकेट करता हूँ, उनके साथ जो वर्क करता हूँ, अगर उनका वेल्थ टारगेट नहीं है, मैं उनको बोलता हूँ सर आप कहीं पे भी इनफैक्ट है ना पैसा इन्वेस्ट ही मत करो, माइट एज गो ऑन टेक इंटरनेशनल हॉलीडे, अच्छा आपका जो ड्रीम कार है बाय कर लो, आपका ड्रीम घर है बाय कर लो, क्यों कर रहे हो? अगर आपका वेल्थ टारगेट है, अगर आपका वेल्थ गोल है किसके लिए करना है करके, तो ही आप इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मत करो। बिकॉज एटलीस्ट यू विल नॉट हैव रिग्रेट ना कि मैंने पैसा सैक्रिफाइस किया और मैंने सब मेरा आगे जो करंट जो कंजम्पशन था मैंने सैक्रिफाइस किया, मुझे घूमने जाना था वो सैक्रिफाइस किया, अच्छा गाड़ी बाय करना था वो सैक्रिफाइस किया, अच्छा फोन लेना था वो सैक्रिफाइस किया और इन्वेस्ट किया, और फिर भी मेरे पास वेल्थ नहीं है, ये रिग्रेट तो नहीं रहेगा आपका। सो इसीलिए इफ यू डू नॉट हैव अ राइट टारगेट अमाउंट, आपको कितने का वेल्थ क्रिएट करना है, इफ यू डू नॉट हैव अ राइट वेल्थ गोल, किसके लिए करना है, तो माइट एज वेल डू नॉट इन्वेस्ट ऑल्सो। Okay, so if you want to ensure the sizable amount of wealth you create, you need to have a target and you need to know why you want to create that wealth. Okay, so it is said, how much income you earn, it does not matter. What matters, how much you save, it matters. And how much you save, it does not matter. What matters, how much you are investing, that matters, because there is a difference between saving and investing. We already learned. So, and it's also said, how much you invest, it does not matter. What matters at the end of 5 years, 10 years, 15 years, 20 years down the line, how much wealth you have created, that matters. Because person financially successful or not successful, वो किससे define होता है? Not based on the income, not based on the saving, not based on the investment, where he is doing, how much he is doing. It is based on any point of time. उनका नेटवर्क कितना है। अगर इमेजिन अगर आपके पास 2 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ का एक वेल्थ था, अगर बैंक बैलेंस के साथ आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स या वेल्थ है आपके पास, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहेगा? आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करोगे? जो आप अभी जो काम करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, क्या वो आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा? नहीं ना। सो
that day when you create that sizable corpus of 2 crores, 3 crores, 5 crores, you can call yourself financially independent. And that should be your aspirational target. That should be your inspirational target. This is what I want to achieve. और ये अचीव करना है. तो इसलिए मेरा जो क्लाइंट है, मैं जो भी जिसके पास भी बात करता हूँ, तो यही है. अगर आपका ये टारगेट नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम लाइफ जीने का टारगेट नहीं है, तो सिंपल आप आप कहीं पे भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा भी आप रिटायर्ड हो ही जाओगे, एक डिसेंट कॉर्पस के से रिटायर्ड हो ही जाओगे. आपका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके बच्चों का एजुकेशन का लोन हो ही जाएगा. बट financial independence, financial freedom will give you the power, the choice to work, and also the choice of work. If you do not want to work, you have a choice. If you want to choose the type of work you want to work, which you like to do, that you can do only when you have sufficient amount of financial independence corpus, sufficient amount of financial freedom corpus in place. And for that, you need to do proper investment, right? So how much you earn, it does not matter. What matters, how much you save, it matters. And how much you save, it does not matter. What matters, how much you invest, it matters. And how much you invest does not matter. What matters, how much wealth you have created, it matters. And finally, friends, finally, how much wealth you have created, it does not matter. How much wealth you have created, it does not matter. What matters, what kind of wealth you have created, what kind of assets you have created, that matters. Yes, friends, as I told you, Mera, in my last more than 2 decades of experience, I have come across so many people who have crores of rupees of assets with them. But like, pandemic kind of situation आया, कितने लोगों का हालत खराब हो गया, कितने लोग स्ट्रेस में हो गए, कितने लोग सुसाइड करना पड़ा, कितने लोगों का पूरा क्या क्या हो गया. ये क्यों पता है? उनके पास ऐसा नहीं है कि उनके पास वेल्थ नहीं था, उनके पास एसेट्स नहीं था, लेकिन उनके पास राइट काइंड ऑफ वेल्थ नहीं था. राइट काइंड ऑफ वेल्थ का मतलब क्या है? जब आपको पैसे की जरूरत है, वो पैसा अवेलेबल होना चाहिए. आपके पास crores of rupees का प्रॉपर्टीज है. If you need 10 lakh, 15 lakh or 20 lakh for medical emergency या कोई legal emergency या tax liability, कुछ भी. If you are not able to withdraw that, maybe for your kids education, अगर आप 5 lakh, 10 lakh, 15 lakh, I'm not against any assets. In fact, you should have all kind of assets in your portfolio. But normally I have seen majority of their savings, people's savings in India, majority of the savings in India are blocked in 1 or 2 particular asset class. And that too, they are more illiquid in nature. अगर आपको 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख चाहिए, आपके नाम पे 5 करोड़ का एसेट है, एंड वो एसेट में आप पैसा 15 लाख नहीं निकाल पा रहे, या 15 लाख निकालें तो पूरा बेचना पड़ेगा, ऐसा सिचुएशन हो जाता है. तो अगर आपके साथ ये नहीं होना है, फ्रेंड्स, यू नीड टू क्रिएट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ राइट काइंड ऑफ एसेट्स. एंड राइट काइंड ऑफ एसेट्स का मतलब है आप कहीं पे भी करो, जो गोल के लिए आपने इन्वेस्ट किया है, वो जब गोल आएगा, वो जब रिक्वायरमेंट आएगा, उस समय में वो एसेट्स आपका कोई नुकसान करे बिना वो पैसा देना चाहिए. अगर ये दिया ना, वो राइट एसेट एसेट्स. आप कोई भी फॉर्म में हो, चाहे वो कल जो आपने आप कौन से इसमें इन्वेस्ट किया, आपको वो बिटकॉइन हो, कोई भी हो. आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी इन्वेस्टमेंट हियर फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड, आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी इन्वेस्टमेंट. यू चूज एनी इन्वेस्टमेंट. जब आपका गोल आएगा, जब रिक्वायरमेंट आएगा, आपके पास वो पैसा होना चाहिए, वो पैसा आना चाहिए. अगर वो आते बिना कोई नुकसान का, वो राइट एसेट है. अदरवाइज आपके पास एसेट होने के बाद भी, आपके पास वेल्थ होने के बाद भी आप हेल्पलेस हो. फ्रेंड्स, आई हैव सीन, इट इज लाइक द लिक्विडिटी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ की लिक्विडिटी कैसा है. आपके पास मर्सिडीज बेंज होगा, लेकिन उसका आपके पास crores of rupees assets होगा. इट इज लाइक मर्सिडीज बेंज. अगर आपके पास लिक्विडिटी नहीं है, इसका मतलब क्या होता है? पेट्रोल डालने के लिए अगर पैसा नहीं है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट मर्सिडीज बेंज दैट यू आर कीपिंग? वो रखने के लिए तो नहीं लिया ना, राइट? ड्राइव करने के लिए लिया है. सो दैट इज द रीजन यू नीड टू हैव लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इज द किंग, माय फ्रेंड. लिक्विडिटी द कॉन. जस्ट इमेजिन, आपके पास 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, वेल एसेट्स है, और 5 करोड़ का प्रॉपर्टी है, लैंड है, बिल्डिंग है, ओके, एंड आपके पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, फाइनेंशियल एसेट्स है. किस में ज्यादा आपको कॉन्फिडेंट फील होता है? किस में ज्यादा अपना पावर है? आप कुछ भी कर सकते हो उसको लेके. यू ओनली डिसाइड विच इज द राइट एसेट. आई एम नॉट सेइंग कि अगेन रियल एस्टेट इज ऑल्सो शुड बी इन आवर पोर्टफोलियो, बट
ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ अपना जिंदगी के, मैंने देखे लोग म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करते हैं, इधर उधर फाइनेंशियल एसेट्स में एफडी करते हैं या पोस्ट ऑफिस में करते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल तक थोड़ा करके जमा करते रहते हैं और एक दिन पूरा पैसा विड्रॉ करता है और लेके जाके ब्लॉक करता है। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, more than 80% of the assets people create during their lifetime by sacrificing so many things. उनका बच्चों को घुमाने नहीं लेके जाते जब चाहते रहते हैं, कभी जो चाहिए वो नहीं खरीदते, कपड़े नहीं खरीदते या बहुत सारी चीजें नहीं खरीदते, बहुत सारी चीजों को सैक्रिफाइस करते हैं। जो एसेट्स क्रिएट करता है, more than 80% of the assets are left behind to the next generation, so that और नेक्स्ट जनरेशन के लिए एंजॉय के लिए नहीं, फाइट करने के लिए छोड़ के जाते हैं। और वो उनके बच्चे लोग, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके ऊपर फाइट करते रहते हैं और कोर्ट में जाके केस लड़ते रहते हैं और गाली देते रहते हैं कि क्या करके गए। ये करने के लिए आपने ये सब सैक्रिफाइस करना था, ये दिन देखने के लिए ये सब सैक्रिफाइस करना था। अपने आप को पूछो, अपने आप को पूछो, ये दिन देखने के लिए आपने ये सब वो सब सैक्रिफाइस किया था। तो इसीलिए बहुत सारे लोग दे लिव लाइक अ पुअर, दे लिव लाइक अ पुअर एंड डाई रिच. They live like a poor to die rich. So our recommendation आपको ये है कि don't live like poor to die rich. आज भी आपको जो आपका रिक्वायरमेंट है वो मीट करना। अगर आपका इनकम कम है तो इनकम में फोकस करो, हाउ कैन आई इंक्रीज, सो दैट आज भी आप अच्छी तरह से जियो। कल जिस दिन आप कमा नहीं सकते, जिस दिन आप काम नहीं कर सकते, जिस दिन आपको इनकम नहीं आता रहेगा, उस समय में आपके एसेट्स, आपके वेल्थ आपको देखभाल करना चाहिए। ये दोनों आपको करना चाहिए। अगर आप ये दोनों करोगे तो आपने जो भी फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो स्टेज है आपने पहुंच चुका है, जो राइट अमाउंट है आपके पास राइट टाइम में मिलेगा ही मिलेगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस टाइप के एजुकेशन आपको और इस टाइप के नॉलेज अगर आपको चाहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप फॉलोइंग अस on social media and Facebook and everywhere. And if you like this video, please write in the comment box आपको ये वीडियो में आपको क्या पसंद आया, प्लीज लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को देखूंगा। ओके, सो विद दिस, थैंक यू सो मच। आई होप दिस वीडियो विल help you look at your money, your income, your savings, your investment, your wealth in a different perspective and a right approach. Okay, so with this, thank you once again. Bye bye. Keep learning, keep growing. Bye bye. Take care.